Everyone, welcome to my channel Education to Awareness and continuing our thermodynamics lecture. Already in the first lecture we have studied that what is a system. A system is anything that we are going to study, we are going to observe. Then what is a surrounding? Everything outside to the system is surrounding. The imaginary wall dividing the system or surrounding, it can be imaginary or real, that is known as the boundary, and the system plus surrounding combined is the universe. ठीक है, तो ऑलरेडी पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक निकाय क्या होता है. तो जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देख रहे होते हैं, वो होता है हमारा निकाय. निकाय के बाहर जो सब कुछ है वो हो जाता है हमारा परिवेश. निकाय और परिवेश को डिवाइड करने वाली आपकी काल्पनिक या वास्तविक जो आपकी दीवार होती है उसे हम कहते हैं हमारी सीमा. ठीक है, और जब हम अपने आपका निकाय को और उसके साथ आपका जो परिवेश है उसको मिला देते हैं तो ये हो जाता है हमारा पूरा ब्रह्मांड. ठीक है, तो we have already discussed what is a system. So now we are going to discuss what are the types of thermodynamic system. So first of all, the thermodynamic system. Okay, the thermodynamic system are divided into basic three parts that are known as open, closed and isolated. So starting with the open system. So what is an open system? So before we are starting the system, first we have to understand on what basis they have been categorized. They have been categorized on two bases. First is energy and second is matter. I hope everyone is clear, but then too I am explaining what is energy. Okay, anything that is exchange between two bodies is called as energy. The energy has the ability to do work. Then what is matter? Matter is anything that you can touch. It consists of solid, liquid or gas. Actually matter exchange energy between them. So it is important before you study the types of system, first of all you understand that what is energy and what is matter. आपको पता होना चाहिए matter क्या होता है और energy क्या होती है. So okay, so starting with the first one that I have said, an open system. So an open system can exchange both energy and matter with its surrounding. So an open system can exchange matter also and energy also. That is, energy can go outside the system, come inside the system. Matter can go outside the system, matter can come inside the system. So example is, suppose you take a pan and put water in it and start it boiling. So when the water will start boiling, the water molecules will evaporate. So water molecules in form of gas particle will escape from the pot or the pan. So this will be exchange of matter. Also there will be transfer of heat energy. There will be transfer of heat energy from the pot or pan from the pot or pan to the atmosphere. So this will be the transfer of matter and this will be transfer of energy. So this is an example of open system. In a system, in an experiment where both energy and matter can transfer. Okay, so suppose there's again a stove top where we are heating. So water vapor which is escaping is example for the matter, and the heat energy that is escaping is the example for the energy. So this is an example for open system. In an open system, both the matter, okay, in any form, solid, liquid or gas, and energy exchange will take place. So this will call an open system. Okay, next we are talking about a closed system. So again we are talking about closed system on two terms, matter and energy. So when we are talking about a closed system, then a closed system can exchange only energy with its surrounding. It can exchange only energy. Matter cannot be exchanged. Matter has to remain fixed inside the system. Only energy will be exchanged. Okay, so again the same example of a pan. Suppose we cover it with a lid. Okay, we have covered it, we have closed it with the lid.
Now when we will heat, the water and the water vapor will remain inside the pan because it is closed, so water vapor cannot escape, but heat energy can pass through its wall. Heat energy can easily pass. So this is the example of closed system where you can see that matter cannot be transferred. Matter will not be transferred. Matter will remain inside the system. Only energy will be transferred. So in any experiment, in any system where the matter has been enclosed, matter cannot go in any form, solid, liquid or gas, but the energy transfer can take place through the boundary. That will be called a closed system. Hope you are able to understand. So okay, next we are going to talk about the system. So ऊष्मागतिकी या ऊष्मा प्रवैगिकी के 3 प्रकार, ठीक है. तो जो हमने वही बात की थी कि हमारा जो आपका निकाय होता है, ठीक है, तो निकाय जो होता है वो हमने बात कर ली थी. कोई भी चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो हमारा निकाय हो जाता है. अब हम निकाय के आपके क्या देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं. तो उसके आपके देख सकते हैं जो आपकी निकाय भी कहते हैं, प्रणाली भी कहते हैं. तो निकाय या जो हमारी प्रणालियां हैं उसके 3 प्रकार हैं, ठीक है, खुली, बंद और पृथक. ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि खुली, बंद और पृथक, ये 2 आपके पैरामीटर्स हैं जिन पे डिफाइन करी गई है. ठीक है, पहला जो आपका जो है वो है आपका ऊर्जा और दूसरा जो है आपका पदार्थ. ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पदार्थ क्या होता है पता होना चाहिए. तो कोई भी आपका जो सॉलिड, लिक्विड या गैस हुआ, ये आपका क्या हो जाता है, ये पदार्थ हो जाता है. और इनसे निकलने वाली ऊर्जा या इसमें आने वाली जो भी आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है. ठीक है, तो ये लगभग सभी को पता होगा, फिर मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आपका पदार्थ क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है. ठीक है, तो अब बात करते हैं एक आपकी खुली प्रणाली की, या खुली निकाय भी हम लोग कहते हैं. तो एक खुली प्रणाली में अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं. ठीक है, ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है और पदार्थ का भी होता है. तो इंग्लिश में मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि एक आपका बर्तन ले लें, उसमें पानी को आपका बॉईल करना स्टार्ट करें. ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में ऊष्मा निकलेगी. तो ये तो देखिए ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया. मगर जब वो वाटर उबलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, तो पानी के जो आपके अणु हैं वो आपके भाप में परिवर्तित होकर जब निकलेंगे तो उसमें से आप देख सकते हैं मैटर भी निकलेगा, है ना. यानी कि आपको जो पदार्थ है वो पदार्थ भी निकलेगा. तो ऊर्जा भी निकल रही है, पदार्थ भी निकल रहा है. तो ये निकल भी सकता है और वापस भी आ सकता है. ठीक है, कि वापस सपोज करिए कंडेंस करा दें, है ना, संघनन करा दें. तो संघनन कराने में क्या होता है, वाटर वेपर वापस आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी जिसको हम आपका एक खुली निकाय या खुली प्रणाली कह रहे हैं, तो वो ऐसी ही आपकी प्रणाली या निकाय होगा जिससे पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आपका आदान प्रदान हो सकता है. ठीक है, फिर बात कर रहे हैं दूसरी ओर बंद प्रणाली की. तो बंद प्रणाली में क्या होता है कि बंद प्रणाली में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा. ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना होगा कि केवल और केवल ऊर्जा आ जा सकती है. वही हमने बात किया कि आपका जो बर्तन है उस पर एक ढक्कन लगा के उसको टाइट बंद कर दीजिए. तो अब जब पानी को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा कि पानी आपका उबलेगा, मगर जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आपके भाप के आपके अणु होंगे, वो बर्तन के अंदर ही रह जाएंगे. वो आपकी जो प्रणाली है आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएंगे. लेकिन हीट एनर्जी जो है वो आपको पता है, वो बर्तन से आसपास का जो वातावरण होगा उसका वो गर्म हो जाएगा. तो वो उस बर्तन से जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो आपकी निकल के बाहर आ जाएगी. तो अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि आपका ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ठीक है, और पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, है ना. एग्जाम्पल भी मैंने आपका इसको बता दिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो. ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है किसमें आपका पदार्थ का आदान प्रदान होगा, किसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, किसमें दोनों का होगा. और अब हम नेक्स्ट आपकी तीसरी कैटेगरी देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. सो एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच कैन एक्सचेंज neither matter nor energy, or which cannot exchange either matter or energy. Okay, so again now this is the third type which will not exchange energy, which will not exchange matter. So neither matter nor energy will be exchanged. All the matter, all the energy will be contained within the system.
So this system is very hard to make because the system should be such that it should be perfectly sealed so that no matter is escaping. Also it should be perfectly insulated so that no energy is escaping. So in practically it is very difficult to make, but it is a type. If any system is such that neither the energy nor the matter is escaping from it or coming inside it, then this will be called an isolated system. A very good example of it, in general life we use a thermoflask. A thermoflask is used to put tea or put something cold in it, and it will keep it for a long time. So thermoflask, you can observe, is approximately an isolated system, because when you put the tea inside, whatever heat is there, it remains inside. Okay, whatever matter is there, it remains inside. So any system which is such that it has been perfectly sealed, closed, so that matter cannot escape, and it has been perfectly insulated so that energy cannot be escaped from it, such a system is known as isolated system. So suppose we have already discussed the universe. तो universe is termed as an isolated system क्योंकि universe में आपका everything is there, nothing can go outside the universe. So universe can be considered as an isolated system because all the matter is inside the universe, all the energy is inside the universe. No matter, no energy can go outside the universe. Therefore universe is also a perfect example of an isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं पृथक प्रणाली. ठीक है, तो पृथक प्रणाली, अब जो हमने दो टाइप पढ़ ली है आपका, खुली और बंद, और तीसरी आ जाती है अब आपकी पृथक. तो पृथक में क्या होता है कि दो चीज जो हमने बात करी, फिर उसी टर्म्स में हम देखेंगे. ऊर्जा की बात करी और साथ ही साथ आपकी पदार्थ की बात करी. तो पृथक प्रणाली ऐसी प्रणाली होगी जिससे ना तो ऊर्जा बाहर जा सकती है, ना अंदर जा सकती है, और ना ही मैटर आपका बाहर जा सकता है, और ना ही उसमें मैटर जो है वो अंदर आ सकता है. ठीक है, तो अब वैसे वही बात हुई कि एक जो पूर्ण पृथक प्रणाली है उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है ना, इस तरह की एक प्रणाली बनाना, क्योंकि दो चीज़ें चाहिए होंगी फिर इसके लिए. पहली चीज़ तो आप उसको इस तरह से सील कर दें तो कोई उसके मैटर बाहर ना जा सके, और दूसरा आपको इस तरह से उसको कवर करना होगा कि उससे कोई ऊर्जा आपकी बाहर ना निकल सके. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक थर्मोफ्लास्क है ना, घरों में यूज़ करते हैं चाय वगैरह रखने के लिए, कभी कभी उसमें सामान ठंडा रखने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो थर्मोफ्लास्क में देखिए क्या होता है कि जो आपने चाय डाल दी है, तो जब उसको टाइट आप बंद कर देंगे तो चाय उससे जाहिर सी बात है बाहर नहीं निकलेगी. ठीक है, और हीट भी उसमें बहुत देर तक रहती है ना, बहुत स्लो होता है. अगर हम उसको नेग्लिजिबल मान ले, है ना, नगण्य मान ले, तो कह सकते हैं कि हीट भी लगभग उसमें आपकी बनी रहती है. ऊर्जा आपकी, है ना, बहुत तेजी से आपकी बाहर नहीं निकलती, जितना जो स्लो रेट है तो उसको हम लोग लगभग नगण्य मान लेते हैं. तो इस वजह से उसको एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि हमारे एक पृथक प्रणाली का है. ठीक है, तो थर्मोफ्लास्क एक एग्जाम्पल हो जाता है. जो पृथक प्रणाली के लिए आपको मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या है, ना ही ऊर्जा बाहर जाएगी, ना ही पदार्थ बाहर जाएगा, और ना ही आपका अंदर की तरफ आ सकता है ना. अब जैसे मान लो थर्मोफ्लास्क का आपने ढक्कन खोल दिया, तो ढक्कन जैसे ही खोला तो ये अब आपका क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया. आप उसको, है ना, चाय को ढाल भी सकते हैं, उसमें से ऊर्जा भी जा सकती है. जब तक वो, है ना, तो एक ही सिस्टम, जरूरी नहीं कि फिक्स हो जाएगा कि अब ये खुला ही है या बंदी है, ओपन है, क्लोज है, या, है ना, आपका. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है अभी आपका ओपन है, जब उसकी कंडीशन चेंज होगी तो आपका क्लोज हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए. जैसा भी हम लोग ने थर्मोफ्लास्क में देखा कि अगर आपका थर्मोफ्लास्क जब बंद है तो वो कैसा सिस्टम है, पृथक प्रणाली, आइसोलेटेड सिस्टम. खोल देंगे तो ओपन सिस्टम, यानी कि खुली प्रणाली आपका हो जाएगा. ठीक है, ब्रह्मांड की भी अगर हम बात करते हैं कि आपका उदाहरण ले सकते हैं, तो ब्रह्मांड को हम कह सकते हैं एक पृथक प्रणाली है, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड के अंदर सारा मैटर है ना. ब्रह्मांड के बाहर तो कुछ है नहीं. ठीक है, तो ब्रह्मांड के बाहर ना कोई मैटर जा सकता है, ना ब्रह्मांड के बाहर कोई ऊर्जा जा सकती है. तो अगर ब्रह्मांड में सब कुछ है, ठीक है, तो ब्रह्मांड को भी हम कहते हैं कि ये हमारा एक पृथक प्रणाली का एक उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ गया. अब सब कुछ आ गया तो ना इससे बाहर कुछ जा सकता है और ना ही इसके अंदर कुछ जा सकता है. तो ब्रह्मांड भी हमारा पृथक प्रणाली का एक आपका परफेक्ट उदाहरण होता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू बताया गया है तीन तरह के सिस्टम जो हम लोग ने अभी तक पढ़े थे. देखिए, पहला आपका ओपन सिस्टम, ठीक है, दूसरा क्लोज सिस्टम,
और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड तीनों आपका एक डायग्राम के थ्रू, अगर देखिए एक तो आपसे तीनों पूछ लिया जाए तो तीनों को डिफाइन कर देंगे और फिर ये आपका डायग्राम बना देंगे। अगर कोई एक पूछा जाता है तो जो सा भी पूछा जाता है उसको आप लिखेंगे और उसके साथ जो सा उसका डायग्राम है वो डायग्राम क्या करेंगे, आप उसको उसके साथ आपका साथ में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए दो चीज़ें वही हमने बताया था, 2 पॉइंट्स होते हैं। तो पहला देख लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आपका मैटर, ठीक है, विद द सराउंडिंग, ठीक है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो दो ही चीज़ों के लिए देखते हैं, मैटर यानी पदार्थ हो गया, अभी सबको क्लियर होना चाहिए, मैटर पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा। तो इन्हीं दोनों टर्म्स में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एरो से बनाया है, रेड वाला किसके लिए, एनर्जी ऊर्जा के लिए, ब्लू वाला किसके लिए, मैटर यानी पदार्थ के लिए। तो ओपन में देख सकते हैं कि ये एरो भी बना हुआ है, ये एरो भी बना हुआ है, यानी कि दोनों एनर्जी भी और आपका जो मैटर भी यानी कि ऊर्जा और पदार्थ दोनों का देखिए आपका 2 साइडेड एरो है, एक्सचेंज आपका हो सकता है। क्लोज वाले में देखिए केवल कौन सा एरो है, रेड वाला। तो रेड वाला किसके लिए, केवल एनर्जी के लिए। तो क्लोज में देखिए क्या होगा, केवल एनर्जी का आपका एक्सचेंज हो सकता है, ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज, ठीक है। और दोनों तरफ का एरो है, तो देखिए क्लोज वाले में ब्लू एरो नहीं है, तो ब्लू एरो नहीं है तो इसका मतलब मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, है ना, यानी पदार्थ का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और तीसरा और लास्ट आप देख सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कोई भी एरो ना ब्लू है ना रेड है, ठीक है। तो इसमें ब्लू भी नहीं है, रेड भी नहीं है, तो इसका मतलब मैटर यानी पदार्थ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है और ऊर्जा यानी एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक सिंपल वे में आपका ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, है ना। हिंदी में आपको पता, अगर डायग्राम अगर आप हिंदी में लिखना चाहें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, खुली निकाय, बंद निकाय और पृथक निकाय, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। Next we are going to talk an example to understand it better, okay, our human body, ठीक है। our body itself is an example of a system. We perform various type of activities, for that we require energy, okay, and we exchange energy with the environment. We take in air, okay, then we use the oxygen from it, then we give out carbon dioxide, so we are exchanging matter. There is continuously depending on the season, suppose it's summers, then there is continuously heat being added to our body. If it will be winter, continuously heat will be absorbed from our body. So like any other animal or any other organism, we are a perfect example of an open system. We are exchanging both matter, we are exchanging both energy with our surrounding. So suppose you are thinking about it or not, you are constantly exchanging energy and matter with your surrounding. For example, suppose you eat something, so that goes inside your system. So, or if you lift a bag or a laundry or anything on a table, so you are picking something and that adds to your system. और सिंपली एज आई एक्सप्लेन, ब्रीदिंग, है ना, सांस ले रहे हैं, सो ब्रीदिंग यू आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. इन ईच केस यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर विद योर एनवायरमेंट. सो एवरी टाइम you can consider yourself knowingly, unknowingly, you are exchanging matter, you are exchanging energy with your surrounding. So human body itself, if you can understand, is example of a system, and this system is an open system. So we are itself a thermodynamic system. ठीक है, तो एक उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पे अपनी सेल्फ बॉडी का, या हमारी जो सेल्फ बॉडी होती है, ठीक है, तो दूसरे जीवों की तरह ये भी एक खुली व्यवस्था है. यानी कि अगर हम देखें, इससे समझे तो आपको ये जो सिस्टम है ये अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि हम अपनी बॉडी के थ्रू भी देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम एक खुली व्यवस्था के रूप में हैं, जहाँ पे हम हमारे वातावरण के साथ लगातार ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं. ठीक है, तो गर्मी होती है तो हमारी बॉडी में गर्मी लगने लगती है, ठंड होती है हमारी बॉडी को ठंड लगने लगती है. तो ये समझ सकते हैं यहाँ पे आपका ऊर्जा का आदान प्रदान आपका हो रहा है. ठीक है, जब आप यहाँ सांस लेते हैं, ठीक है, तो हवा आपके अंदर जाती है, मैटर आपके अंदर जाता है, फिर आप जब सांस छोड़ते हैं तो उस
उसमें हवा के साथ, है ना, पहले ऑक्सीजन आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, किस तरह से आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप सोचे ना सोचे, है ना, नोइंगली अननोइंगली आप ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, है ना। इसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आप खुद ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि अन्य जीवों की तरह हम लोग एक खुली व्यवस्था है। खुली व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे में एनर्जी आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैटर आ रहा है या एनर्जी मैटर दोनों बाहर नहीं जा पा रहा है। खुली व्यवस्था है, एनर्जी भी अंदर बाहर आ रही है, मैटर भी आपका अंदर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आप इस बारे में सोचे या ना सोचे, आप अपने परिवेश के साथ लगातार ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना। कुछ उदाहरण और ले लीजिए कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो मैटर आपके अंदर जाता है। ठीक है, जब टेबल पे आप कोई कपड़ा उठा रहे हैं, कोई बैग उठा रहे हैं, तो वो आपका जो चीज़ है वो आपके सिस्टम में क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, वो मैटर आपके सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है। या फिर केवल आप सांस ही ले रहे हैं, तो वही उसका एग्जाम्पल बताया मैंने कि सांस ले रहे हैं तो भी हवा अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो आपका अगेन जो मैटर है यानी कि पदार्थ है उसका आदान प्रदान, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक मामले में आप अपने पर्यावरण के साथ ऊर्जा का और पदार्थ का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का मैंने इसलिए लिया, आपकी बॉडी का, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअली में जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या। आगे तो हम लोग इसको टफ टिपिकल एक्सपेरिमेंट्स के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि हर कुछ जो आप एक्सपेरिमेंट करें, जो आप देख सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो दो प्रकार और हैं जिससे हम ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो प्रकार में, पहला प्रकार आपका आ जाता है होमोजेनस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, विच इज बीन डिफाइंड एज वन हुज केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और चेंज कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो होमोजेनस जैसे हम बात करते हैं, होमोजेनस इज समथिंग विच इज यूनिफॉर्म। Okay, so uniform in terms of what? Uniform in terms of chemical composition, what is its chemical structure, then physical properties, what are its physical properties, and if there is change, then that change is continuous from the point to point. Okay, a homogeneous system can be exemplified by imagining a column of atmospheric air. Suppose we are taking atmospheric air, which is a mixture of number of gases. Air, you know, contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and various other traces of gases also, mainly, but it has nitrogen and oxygen. Okay, in a system of this kind acted upon by force of gravity. So like the force of gravity acts on your body, like the force of gravity acts on any other object, same way the force of gravity acts on air also. So both the composition of the system and its physical properties will continuously change from one point to another. So in this system the composition of the system remains same. Suppose you take part of air, so you know 79% is nitrogen, so this composition is more or less fixed. So if you take oxygen is around 20 to 21%, this composition is more or less fixed. So this is called homogeneity, that it has a uniform composition. Its properties of air are fixed. Suppose you take some volume of air and you will see its properties, and you take another volume of air, then you see its properties, you will see that the properties are same, and whatever change is taking place, it is same from each of the points. So homogeneous system, again example you can take, suppose you are taking a glass of water, you are putting a sugar into it and dissolving it. So when dissolved, it has a uniform composition. This is a homogeneous system. Homogeneous system is a system which is having a uniform composition. And next we will talk about heterogeneous. So when the sugar was put in the water, that was heterogeneous. Water was separate, sugar was separate. So this is heterogeneous. When it was mixed, it becomes homogeneous. Sugar molecules go in between the water molecules and are distributed uniformly. Okay, so hope you are able to understand.
होमोजेनियस को हम हिंदी में कहते हैं सजातीय थर्मोडायनेमिक प्रणाली, ठीक है। तो उसी के रूप में परिभाषित किया गया है कि रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी भागों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। कि उसका जो पूरा केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संरचना है ना, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण हैं वो समान होने चाहिए, या एक बिंदु से दूसरे पर लगातार बदलते रहें। इसका मतलब ये ऐसा नहीं यहाँ पे बदले फिर आगे नहीं बदले, तो या तो पूरा सेम ही हो तो चेंज ही ना हो, और अगर चेंज हो भी रहा है तो वो चेंज लगातार यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो एक सजातीय प्रणाली है ना, वायुमंडल की हवा, जैसे हमने कहा कि उसकी आप क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कई सारी आपकी जो गैसों हैं इनका आपका मिश्रण होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्यतः इसमें जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी पे गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, उसी तरह से आपकी जो हवा होती उस पे भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो वही बात है कि अगर सब पे बल लग रहा है, एयर पे हमने एयर का पार्ट ले लिया, तो जैसे बल नाइट्रोजन पे लग रहा होगा वैसे ही बल किस पे लग रहा होगा, ऑक्सीजन पे। ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा लग रहा हो और ऑक्सीजन पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो वो कम लग रहा हो। तो देखिए यहाँ पे जो एक समान लग रहा है, इस तरह से जो आपकी प्रणाली होती है इसे हम कहते हैं हमारी सजातीय प्रणाली, ठीक है। तो या तो मान लीजिए जैसे हवा जैसे हम रख दे बिल्कुल एक है ना आपका किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस तरह से जिसपे आपके कोई फोर्सेस ना लग रहे हो, ठीक है। तो उसमें तो आपका मान लीजिए क्या कहते हैं वो आपका होमोजेनस हो गया अपने आप, है ना, सजातीय हो गया। आप सपोज करिए अगर हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाना है कि हर बिंदु पे लगने वाला प्रेशर जो हो वो क्या हो, एक समान हो। तो उस केस में आपका ये क्या होगा, सजातीय आपका थर्मोडायनेमिक प्रणाली होगी। तो जैसे मैंने बताया है कि आपका पानी में अगर आप शक्कर डालें तो पानी में शक्कर जब डालेंगे तो पानी और शक्कर अलग अलग होगा, तो ये हेट्रोजेनस सिस्टम हुआ। अब जब आप उसको घोल देंगे है ना, तो वो क्या बन जाएगा, सजातीय थर्मोडायनेमिक प्रणाली बन जाएगी। क्योंकि जब एक बार आपने घोल दिया तो वो जो कण है आपके शक्कर के वो पानी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ऐसा नहीं आप पानी और शक्कर को अलग अलग देख सकते हैं, है ना, वो पूरा उसके में आपका मिक्स होके एक सजातीय थर्मोडायनेमिक सिस्टम या प्रणाली बना लेता है। So heterogeneous, so again heterogeneous comes from the homogeneous. So heterogeneous is something that consists of two or more homogeneous bodies. When two or more homogeneous bodies meet, they become a heterogeneous system. So homogeneous bodies of a heterogeneous system are referred to as phase. Suppose liquid and gas are mixed, suppose gas and liquid are mixed, liquid and solid mixed. So each phase is separated from other phase by interface or boundary and is passing over such a boundary, the chemical composition of the substance or its physical properties abruptly change. So what are an example of sugar? If we take water and sugar, we put the sugar in water, then sugar is solid, water is liquid. They are different, that is heterogeneous. You can clearly see boundaries of sugar particles that are separated from the water. The physical properties of sugar is different, the physical properties of water is different, but when you dissolve, all the properties become same. So until it is dissolved, it is a heterogeneous system. After it is dissolved, it is a homogeneous system. Okay, this phase boundary must not be regarded as a mathematical surface. Okay, so already we have discussed, so we do not consider the layer to be having some mass or having some volume. The imaginary surface that is dividing the heterogeneous system, we consider it to be massless. Okay, so the properties of one phase pass or turn rapidly into the properties of other phase. So you can see the properties that are connected one phase to another. So you can take different examples also. Suppose a cold drink bottle is the example of heterogeneous system. It has carbon dioxide dissolved in it. So when the bottle is closed, it is a homogeneous. You can see there is no difference. You cannot observe the carbon dioxide particles in the cold drink. But when you open, it becomes a heterogeneous system. The bubbles shoot out from the cold drink. You can clearly see the carbon dioxide bubbles coming out from it. So when you open it, it becomes a heterogeneous system. So uniform, when you cannot see the liquid gas or liquid solid, then it will be homogeneous. Okay, when you can clearly see the phases, that this is liquid, this is gas, this is solid, this is liquid, then that will be a heterogeneous system.
ठीक है। तो हेट्रोजेनस सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं विषम प्रणाली। तो आप इसमें देखिए क्या हो गया, दो या अधिक सजातीय निकायों को, प्रणालियों को मिलाकर एक रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक विषम प्रणाली के सजातीय निकायों के जो चरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है। तो ये चरण जो हम कह रहे हैं ये फेज को कह रहे हैं। ठीक है। तो सॉलिड आपका कह सकते हैं चरण, लिक्विड चरण, गैस चरण, है ना, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। ठीक है। तो प्रत्येक चरण को अन्य चरण से अलग किया जाता है ना। तो वही बात है, हेट्रोजेनस में अलग अलग दिखेगा, शक्कर अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, है ना। अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लें तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब बंद होती है तो आपको दिखता है वो लिक्विड है सिर्फ, तो वहां पे जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, होमोजेनस सिस्टम है। ठीक है। और उसके अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मगर वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख नहीं रही है, मगर जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो गैस बबल बाहर निकलते हैं। अब आपको दिख रहा है कि उसमें लिक्विड भी दिख रही है और गैस भी दिख रही है। तो जब लिक्विड और गैस दोनों आपको दिखने लगा तब ये सिस्टम कैसा हो गया, हेट्रोजेनस, कि आपको इसके जो चरण है, जो इसके फेज है वो अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। पानी में शक्कर डाला, अलग अलग दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है। घोल दिया तब ये आपका सजातीय यानी होमोजेनस हो जाएगा। जब तक नहीं घोला है, यानी कि जब तक आपको सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस या कोई भी ये तीन फेज में से अलग अलग दिख रहा है, तब तक ये आपका क्या होगा, विषम होगा। ठीक है। तो प्रत्येक चरण को अन्य चरण से अलग किया जाता है इंटरफेस सीमाओं के द्वारा। इस तरह की सीमा पर पदार्थ रासायनिक संरचना या भौतिक गुण अचानक परिवर्तन से गुजरता है ना। वही हमने बताया था कि अब जो गैस की प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके गुण हैं वो अलग होंगे, जो लिक्विड के गुण अलग होंगे, सॉलिड के गुण अलग होंगे, लिक्विड के गुण अलग होंगे। तो ये जब आपका ये जो दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उस कांटेक्ट पे इनके जो भौतिक गुण होते हैं, जो रासायनिक आपकी संरचना होती है, ये आपकी बदल जाती है। ठीक है। इस चरण की सीमा को गणितीय सतह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। तो वही हमने कहा था कि हम इसको कोई मैथमेटिकल सरफेस नहीं मानते कि हाँ कि एक मैथमेटिकल सरफेस है, वो हमने बताया था, हम इसको ऑलमोस्ट एक इमेजिनरी बाउंड्री ही कंसिडर करते हैं ना, उसको एक मैथमेटिकल सरफेस ट्रीट नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। लेकिन चरणों को अलग अलग करने वाली एक पतली परत के रूप में देखना चाहिए कि एक वो परत की तरह है। ठीक है। कि वो बबल्स की तरफ आपको चारों तरफ एक परत दिख रही है, शक्कर पानी में है तो उसकी तरफ चारों तरफ परत दिख रही है, नमक को डाल दे पानी में, है ना। अब मान लीजिए लकड़ी के टुकड़े डाल दें तो लकड़ी के टुकड़े घोलते रहे, घुलेगा तो है नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका विषम प्रणाली यानी कि हेट्रोजेनस सिस्टम। मगर शक्कर डाला, उसको घोल के आप होमोजेनस बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं हर हेट्रोजेनस सिस्टम होमोजेनस बन ही जाए। ठीक है। तो होमोजेनस सिस्टम जो एक समान होगा, हेट्रोजेनस सिस्टम, है ना, यानी विषम प्रणाली जो कि एक समान आपका नहीं होगा, आपको अलग अलग उस सिस्टम में एक सॉलिड अलग दिख रहा है, लिक्विड अलग दिख रहा है, गैस अलग दिख रहा है। तीनों में से कम भाई दो तो होने चाहिए, या तो सॉलिड लिक्विड दिखे, लिक्विड गैस दिखे, या सॉलिड गैस दिखे। ठीक है। एक परत जहां एक चरण के गुण को पारित होते हैं या दूसरे चरण के गुण में तेजी से बदल जाते हैं। तो वही बात है कि जहां पे वो परत होगी वहां पे सॉलिड की प्रॉपर्टी लिक्विड में, लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड में, वो आपकी चेंज हो रही होगी। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। ठीक है। होप सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ में ना आया हो, कोई डेफिनेशन समझ में ना आई हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, इसको कमेंट में बताएं। या अगर आपको कोई चीज़ लगती है जिसमें सुधार हो सकता है, वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं आगे आने वाले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।